Good morning students and welcome to class 4th EVS. Today we are explain you about differently abled people. Some special peoples are called differently abled people. God gives us many parts in our body to feel our surroundings, such that our eyes help us to see, ear help us to hear, and mouth help us to speak. Our skin help us to touch or feel. Our ears help us to hear. But some people are lose these abilities, then they are called specially people or differently abled people. Because why are they different? Because they want some special care and love from us to live a normal life. They need sympathy, but with sympathy they also need cooperation and our support. So these are peoples who are called specially abled people. Means those peoples who lose their ability to hear, see or speak, walk, etc. are called special people. Then if a person is not able to see, they are called blind people. If a person is not able to hear, they are called deaf. If a person is not able to speak, they are called dumb. Deaf, dumb. And those peoples who are not able to walk, they are called lame. So, as like this, some peoples are differently abled peoples. So, let's start our reading. There are many people who cannot see, hear or speak. They are called special people or differently abled people. These people have a special need and they need our love and special care to lead a normal life. They not only need our sympathy but also our cooperation and support. People who are blind use their sense of touch to read the Braille script. What is a Braille script? Braille script is used for blind people to study or reading something else. Then in this script, a thick paper we have. On this thick paper there are some raised dots made by pointing tools. मीन्स एक मोटा पेपर होता है, उसके ऊपर 6 होल्स का यूज़ करते हुए एक नीडल का हेल्प लेते हुए होल्स किए जाते हैं और वो होल जब उभर के ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो उनको टच करके ऐसे फील करके और वो पर्सन सीख सकता है कि वहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ था. तो जो रेज्ड होगा वो थोड़ा मोटा वाला होता है और इस तरह से उसको समझ में आता है कि मैंने क्या रीडिंग करना है. Braille written on a thick paper by making a row of raised dots with a pointing tool. People who cannot hear are regarded as deaf. जो लोग सुन नहीं सकते उनको हम deaf कहते हैं. And people who cannot speak are referred as dumb or mute. और जो speak नहीं कर सकते उनको dumb कहते हैं. अब डीफ और डम्ब पीपल जब एक दूसरे से बात करते हैं, कन्वे करते हैं, तो वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वो अपनी साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे अपनी आईज़, माउथ, फेस और हैंड्स. इनके मूवमेंट्स को वो शो करके और कम्युनिकेशन करते हैं. As deaf and dumb people are unable to speak or hear, they communicate by using a sign language. और इस तरह से इशारे करके जब वो बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं साइन लैंग्वेज. If one of these sense is damaged, अगर इनमें से कोई सी भी एक सेंस डैमेज है, हमारा कोई भी एक चीज़ काम नहीं कर रही, तो हम लोग दूसरी साइड कुछ एक स्पेशल एबिलिटी उस पर्सन में देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है और वहाँ पे वो ब्रेल स्क्रिप्ट में पढ़ाई करता है, यानी कि वो ब्लाइंड है.
बट उसकी एक एबिलिटी है कि वो बहुत ही अच्छे म्यूज़िक सेंस रखता है और जो भी ट्यून्स होती है वो उन्हें बहुत ही जल्दी सेंसिटिव कर लेता है, बहुत ही जल्दी उसको पिकअप कर लेता है और उसको फॉलो कर सकता है। तो एक गॉड जो है वो हर किसी में ये एबिलिटी नहीं डालता है, वो जो पीपल्स स्पेशल पीपल होते हैं उनमें एक स्पेशल एबिलिटी भी साथ में देता है। तो वी स्टार्ट लर्न। इफ़ वन ऑफ द सेंस इज डैमेज मीन्स एक सेंस अगर ख़राब होती है, अदर सेंस बिकम स्ट्रॉन्ग, दूसरी सेंस उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, टू मेक अप फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल समवन who has lost her or his sight may develop a very good sense of hearing, मतलब जिसकी सुनने की और देखने की शक्ति होती है उसमें से एक शक्ति अगर ख़त्म हो रही है, कम है, यानी कि वो देख नहीं सकता, तो उसकी सुनने की पावर बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अपन को बताया हुआ है तरुण। तरुण इज़ ए ब्लाइंड सिंस बर्थ से ही वो बच्चा ब्लाइंड है। हिज पेरेंट लव हिम वेरी मच, उसके पेरेंट्स उसे बहुत लाइक करते, बहुत लव करते। ही गोज़ टू स्कूल एंड यूजेस द ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड, वो स्कूल जाकर ब्रेल स्क्रिप्ट में रीडिंग करता है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ ही इज़ गुड एट द म्यूज़िक टू, स्टडीज़ के साथ साथ वो म्यूज़िक में भी अच्छा है। ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मैनी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, उसने कई सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। हिज म्यूज़िक टीचर सेज दैट ही इज़ एबल टू पिकअप ट्यून्स वेरी क्विकली, वो ट्यून्स बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है। इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सेंसिटिव टू दीज स्पेशल एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। वी कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम बाई पुटिंग आवर सेल्व्स इन देयर सिचुएशंस। मीन्स हमें ऐसे पीपल्स की हेल्प करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उनको सबके जैसा इक्वल व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए उनके साथ। थैंक यू।